Hello students, I am Divya Kashyap from Success Series Education. Today I will conduct a quiz of MCQs from class 10th Science chapter 13, that is magnetic effects of electric current. So what I'm going to do is I will share a question, give you 4 options. You can make guesses in the live chat and after 10 seconds I will give you the answer and discuss it. Before starting, I would like to tell you that we have a lot of free content for students of class 10th and we have compiled all the links in a free PDF. Please download the PDF from the link given in the description box below this video. You can prepare for board exams with the help of this content and that too free of cost. So let's start with the MCQ session now. So the first question is, natural magnet is A. Hematite, B. Magnetite, C. Siderite, D. None. And your time starts now. आपको बताना है कि इनमें से नेचुरल मैग्नेट हम किसे बुलाते हैं. Time is up and the correct option is option B, that is magnetite. मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, इसको लोडस्टोन भी बुलाते हैं हम. It is called a natural magnet because it occurs naturally. It is present in the core of the earth. Next question is, a magnetic field line is used to find the direction of A. South north, B. A compass needle, C. A bar magnet, D. Magnetic field. And your time starts now. आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उससे हम किस चीज की डायरेक्शन पता कर सकते हैं. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Obviously, as the name suggests, magnetic field line. So these are the hypothetical lines which are drawn in order to show the magnetic field. So magnetic field line से हम magnetic field की direction का पता लगा सकते हैं. Next question is, the most suitable material for making the core of an electromagnet is A. Soft iron, B. Brass, C. Aluminium, D. Steel. And your time starts now. आपको बताना है कि इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाने के लिए सबसे सुटेबल मटेरियल क्या होता है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है which behaves as a magnet when current is passed through it, but as soon as the current is switched off, its magnetism is lost. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो सुटेबल मटेरियल होता है दैट इज सॉफ्ट आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the given is not attracted by a magnet? A. Steel, B. Cobalt, C. Brass, D. Nickel. And your time starts now. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. इट इज ब्रास. ठीक है, जो ब्रास है हमारा, इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the given statements is incorrect regarding magnetic field lines? A. The direction of magnetic field changes with the change in the shape of magnet. B. Magnetic field lines are closed curves. C. If magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent zero field strength. D. Relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of field lines. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. जो हमारे पास ए ऑप्शन है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका जो डायरेक्शन है वो शेप ऑफ मैग्नेट
के बदलने से नहीं बदलता, बल्कि करंट की डायरेक्शन बदलने से बदलता है। और जो ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field is the largest when the angle between the conductor and the magnetic field is A 45 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 180 degree। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जब हमारे पास एंगल कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री रहता है, मतलब वो परपेंडिकुलर होते हैं, तब फोर्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स ए इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बी मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, C electrical energy into chemical energy, D mechanical energy into electrical energy। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, बी द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट passing through a coil, C producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and a coil, D the process of rotating a coil of electric motor। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हम इंड्यूस करंट कॉइल के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम कॉइल को बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में मूव करें या फिर मैग्नेट का मोशन हो विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड इनटू अ कॉइल। The magnitude of induced current does not depend upon A speed with which the magnet is moved, B the number of turns of the coil, C the resistivity of the wire of the coil, D the strength of the magnet। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको बताना है कि इंड्यूस करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है। Time is up and the correct option is option C. The magnitude of induced current does not depend upon the resistivity of the wire of coil. It is independent of resistance as well as resistivity. Next question is, the magnetic effect of current was discovered by A. Maxwell, B. Fleming, C. Oersted, D. Faraday। And your time starts now. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो ओस्टेट ने अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the direction of current in a solenoid when viewed from a particular end is anti-clockwise, then this end of solenoid will be A west pole, B south pole, C north pole, D east pole। And your time starts now। आपको बताना है कि अगर हम सोलेनॉइड को एक पर्टिकुलर एंड से देखते हैं, राइट, जिसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, तो सोलेनॉइड वो क्या हमें लगता है। तो हमारा टाइम अप हो चुका है और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्थ पोल। सो इफ द करंट
in the solenoid flows in the anti-clockwise direction, then that end is act as a north pole, and this is according to the clock rule. It is according to the clock phase rule. Next question is, the north-south polarities of an electromagnet can be found easily by using A. Fleming right-hand rule, B. Fleming left-hand rule, C. clock face rule, D. left-hand thumb rule. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. हमें बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो नॉर्थ साउथ पोलैरिटीज हैं कि कौन सी चीज नॉर्थ और कौन सी साउथ पोल की तरह एक्ट करती है, वो हमें कैसे पता लगता है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. इट इज नोन बाय क्लॉक फेस रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the strength of magnetic field between the poles of an electromagnet would be unchanged if A. current in the electromagnet winding were doubled, B. direction of current in electromagnet winding were reversed, C. distance between the poles of electromagnet were doubled, D. material of the core of electromagnet were changed. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B. That is direction of current in the electromagnet when reversed. Next question is, the shape of the field lines of the magnetic field around a straight conducting wire is A. circular, B. triangular, C. pyramidal, D. square. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. आपको बताना है कि जो शेप होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर वो कैसी होती है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. हमें पता है कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं. सो बेसिकली शेप कैसा रहता है, सर्कुलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन आयरन बार विथ कॉइल्स ऑफ वायर wound around it with act as a temporary magnet when an electric current flows through the wire is called A. bar magnet, B. electromagnet, C. permanent magnet, D. all of these. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. आपको बोला गया है कि आयरन बार पे हमें वायर को बाउंड किया गया है, वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब उसमें से करंट पास करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे. तो आपका टाइम अप होता है और हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट दैट इज a substance which behave as a magnet as long as the current flows through it. Next question is, the magnetic field produced at the center of circular wire is proportional to dash and inversely proportional to dash. A. weight of conductor, current, B. radius of loop, current, C. current, radius of loop, D. length of conductor, current. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि सेंटर में प्रोड्यूस होती है सर्कुलर वायर के, वो प्रोपोर्शनल होती है करंट के. तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has stated the right hand thumb rule? A. Oersted, B. Fleming, C. Einstein, D. Maxwell. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. हमें बताना है कि राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था हमें. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. आपको पता होगा कि राइट हैंड थंब रूल का जो प्रॉपर नाम होता है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल होता है, एंड इट इज बिकॉज इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड. A. perpendicular to the magnetic field, B. parallel to the magnetic field, C.
far away from the magnetic field, D inside a magnetic field. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे, क्योंकि करंट एक्ट करने के लिए जो एंगल होना चाहिए, या आप कह सकते हो जो उनका प्लेसमेंट होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड बाय A. Maxwell's thumb rule, B. Fleming's right hand rule, C. Fleming's left hand rule, D. None of these. And your time starts now. हमें बताना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो फोर्स एक्ट करता है उसको कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. It is given by Fleming's left hand rule. It is given by Fleming's left hand rule, and according to it, if you stretch your forefinger, your the thumb and the center finger mutually perpendicular to each other such that they are at 90 degree to each other, तो जो forefinger है हमारी, it gives the direction of magnetic field, thumb gives the direction of force, and center finger gives the direction of current. Next question is, the direction of magnetic field lines in the region outside the bar magnet is A. From the north pole towards the south pole of the magnet, B. From south pole towards the north pole of the magnet, C. In the direction coming out from both the poles of the magnet, D. In the direction entering both the poles of the magnet. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द थंब? ए. इलेक्ट्रिक करंट, बी. मैग्नेटिक फील्ड, सी. मैग्नेटिक फोर्स, डी. मोशन ऑफ कंडक्टर. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. जो हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है वो हमें स्टेट करता है कि सपोज हम एक कंडक्टर को पकड़ रहे हैं सच दैट के थंब ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में फिंगर घूमती है वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. राइट. और आपको याद रखना है कि जब करंट ऊपर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, और करंट जब नीचे आता है तो डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज. सो थंब बेसिकली पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. Next question is, which type of current is obtained from a battery? A. AC, B. DC, C. Both AC and DC, D. Depends on the type of battery. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. आपको बताना है कि बैटरी से हमें किस टाइप का करंट मिलता है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. बैटरी से हमें डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट मिलता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में किसी भी एपिलेंस में फ्लो होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ये टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द रूल यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट? ए. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बी. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, डी. एम्पियर्स रूल. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. आपको बताना है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें इनमें से किस रूल से मिलता है. सो योर टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से मिलता है, एंड अकॉर्डिंग टू इट
इसमें भी हम फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं. फोर फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है, थंब हमें मोशन की तरफ पॉइंट करता है, राइट. और जो सेंटर फिंगर होती है वो हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैग्नेट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी गुड्स? A. U-shaped magnet, B. bar magnet, C. electromagnet, D. simple magnet. And your time starts now. आपको बताना है कि हेवी गुड्स को हम कौन से मैग्नेट से आराम से लिफ्ट कर सकते हैं. टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो काफी हाई होता है और स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी लाइक इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द करंट तो हम मैग्नेटिज्म का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं एंड इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन अ मैग्नेट? A. Magnetism will increase. B. Magnetism will decrease. C. No effect. D. None of these. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B. Magnetism will decrease on heating a magnet. अगर आप मैग्नेट को हीट करते हो, अगर आप मैग्नेट को हैमर करते हो, मिस हैंडल करते हो तो मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म खो देता है. So with this, we come to an end of the MCQ quiz. Thank you for watching the video. If you liked it, hit the like button, share the video and hit the bell icon for the updates on the next upload. So meet Divya Kashyap signing off. We'll meet in the new MCQ session with new concept, new questions and new explanations. So till then, take care. Bye-bye.